السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں یہ لیسن شروع کیا تھا جس کا نام مصنفان رکھتے ہیں جوازم الفعل المضارع کہ فعل مضارع کو مجزوم بنانے والے ادوات یا آپ کہے عوامل ٹولز. اس میں جو پہلا پارٹ ہم دیکھ رہے تھے جس میں مصنفان بیان کرتے ہیں وہ ادوات یعنی وہ ٹولز وہ عوامل وہ ایجنٹس التی تجزم فعلا واحدا جو ایک فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں، جس میں ہم نے مثالیں وہ ہم الحمدللہ پڑھ چکے تھے. اس کے متعلق جو بحث ہے وہ بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے تھے اور قاعدہ بھی پڑھ چکے تھے. اور آج ہم انشاءاللہ تعالی اس قاعدہ نمبر 49 یا قاعدہ نمبر 50 اس تھوڑی سی وضاحت دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اس لیسن کی تمرینات جلدی جلدی دیکھیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ لیسن پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو لیسن ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا اس کا نام مصنفہ رکھتے ہیں جوازم الفعل المضارع. اس کے دو پارٹس ہے الادوات التي تجزم فعلا واحدا اور اسی طرح الادوات التي تجزم فعلین، یعنی ایسے عوامل جو دو فعل مضارع کو مجزوم بناتے ہیں. اور فی الحال جو ہم نے قاعدہ دیکھا اس میں مصنف بیان کرتے ہیں من الادوات یعنی وہ ادوات وہ عوامل وہ ٹولز التی تجزم جو مجزوم بناتے ہیں فعلا مضارعا واحدا ایک فعل مضارع کو، وہ کون ہے؟ لما ولام الامر. ان میں سے جو وہ ٹوٹل 4 ٹولز ہوتے ہیں یعنی 4 لفظی عامل ہوتے ہیں، ان میں سے 2 یہ ہے لما اور لام الامر جو ہم نے اس لیسن میں دیکھا. اور اس میں جو لما پہلا ہے والاولا تفید النفی کلم، لما جو ہے یہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ یہ ہمیں نفی کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ لم ہے. جیسے لم ہے وہ بھی فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے، وہ بھی فعل مضارع کی نفی کرتا ہے، وہ بھی فعل مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے. اسی طرح لما بھی ہے، مگر مصنف بیان کرتے ہیں غیر ان النفی بها يستمر الى زمن التکلم، مگر لما کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فعل مضارع کی وہ لگاتار رہتی ہے، کنٹینیو رہتی ہے، مستمر رہتی ہے، برقرار رہتی ہے، یا آپ کہیں الانگیٹ ہوتی ہے، ممتد ہوتی ہے. کب تک؟ اس زمانے تک جس میں متکلم کلام کر رہا ہے. اور دوسرا جو ہے لام الامر اس کے متعلق بیان کرتے ہیں مسلم والثانیہ جو دوسرا ہے یعنی دوسرا ادات یا دوسرا عامل تجعل المضارع مفیدا للامر، یہ بھی فعل مضارع کو ایک تو یہ مجزوم بناتا ہے اور یہ فعل مضارع کو فائدہ دیتا ہے امر کا، یعنی یہ فعل مضارع کو تبدیل کرتا ہے کس میننگ میں؟ امر کے میننگ میں، جیسا کہ ہم دیکھیں گے. تعلیق تقدم فی القواعد 13 to 17 یعنی قاعدہ نمبر 13 to 17 جو ہے اس میں گزر چکا ہے کہ ان اعراب المضارع رفع و نصب و جزم، کہ فعل مضارع جو ہے اس پہ 3 قسم کے اعراب داخل ہوتے ہیں، رفع، نصب اور جزم. اس میں یہ 3 قسم کے اعراب داخل ہوتے ہیں. وقد مضى الكلام على الرفع والنصب، اس میں جو رفع اور نصب ہے اس کے متعلق جو بعض احکام ہیں اس پہ کلام گزر چکا ہے. وبعض احکام الجزم، اسی طرح جزم کے متعلق بھی بعض احکام وہ گزر چکے ہیں. وفی ہاتین القاعدتین، مگر اب جو اس لیسن میں یا اس لیسن کی جو 2 پارٹس ہیں اس میں جو مصنف 2 قاعدے بیان کرتے ہیں. ذکر المصنفان بقیت الجوازم، اس میں مصنفان جو ہے باقی جوازم یعنی باقی جو جازم ہے فعل مضارع کو وہ بیان کرتے ہیں. والجازم کما تقدم نوعا، اور جازم جو ہے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے. پہلا جازم لفعل واحد، ایسا جازم جو ایک فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے. دوسرا جازم لفعلین، یعنی ایسا جازم دو فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے. اس میں سے جو اب پہلا ہے جس کے متعلق ہم نے قاعدہ پڑھا فالجازم 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 لفعل واحد أربعة، فالجازم لفعل واحد أربعة، یعنی ایک فعل مضارع کو جو مجزوم بناتا ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہے. یعنی مراد ہے یہاں پہ وہ عوامل وہ جوازم جو لفظی ہے، جو لفظی ہے.
जो लफ्जी है, जो मानवी अवामिल नहीं, क्योंकि वरना एक और जाजिम होता है, यानी एक और तरीके से फेल मुजारे जाजिम बनता है जिसे हम कहते हैं तलब, मजमून भी तलब, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। मगर यहाँ पे जो मुराद है चार जाजिम, उससे कौन मुराद है? लफ्जी, यानी जो कोई लफ्ज दाखिल होता है, कोई लफ्जी आमिल दाखिल होता है और उसके बाद फेल मुजारे को मजमून बनाता है। उसमें पहला कौन है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं? वो है ला अन्नाहिया, या जिसे ला तलबिया भी कहते हैं, उसे ला अन्नाहिया भी कहते हैं, यानी जिससे फेल मुजारे जो फेल मुजारे पर दाखिल होता है और मुखातब को किसी चीज़ से मना करता है, या उसे ला तलबिया भी कहते हैं। ये निकला है तलब से, क्योंकि तलब से दोनों चीज़ें मुराद होती है, तलब से नहीं भी मुराद होती है और तलब से अमर भी मुराद होता है और तलब से नहीं भी मुराद होता है। इसलिए इसे कहते हैं ला तलबिया, यानी मुखातब से तलब किया जाता है कोई फेल न करने का, उससे रुकने। वतकद्दम अन्नहा हर्फ नहीन मौदूअतुन लितलब तर्क। देखिए लितलब तर्क बयान करते हैं कि, यानी उलमा बयान करते हैं अपनी किताबों में, नहव की किताबों में, कि जो ला नाहिया है, जैसा इससे पहले गुजर चुका है, कि ये ऐसा हर्फ है जो रखा गया है, ये हर्फ नहीं है, ये हर्फ नहीं है जिससे मना किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है, मना किया जाता है, जो रखा गया है किसके लिए? लितलब तर्क, यानी मुखातब से तलब किया जाता है कोई फेल तर्क करने का, उसे अबेंडन करने का। वज़ालिका इन कान मिन आला इला अदना, और ये नहीं का माना कब देता है? यानी तलब तर्क, यानी नहीं का माना, यानी हुक्म उसे दिया जाता है कोई चीज़ तर्क करने का, ये कब ऐसा ऐसा माना देगा? जब मुतकल्लिम जो होगा वो आला होगा और वो खिताब करता होगा उससे जो उससे अदना है, यानी जो उससे छोटा है। मसलन मसलन आप कहे कि जैसे कोई बादशाह अपने किसी वजीर या किसी गुलाम को हुक्म देता है, या मसलन अल्लाह ताला अपने बंदों को हुक्म देता है, तब हम कहेंगे कि ये नहीं के लिए है, यानी बतौर उलू, या आप कहे कि बतौर हुक्म। वह इनकान मिन अदना इला आला, अब अगर ये अदना शख्स की तरफ खिताब होगा किसी आला शख्स की तरफ, यानी कोई मंजिलत में अदना है, वो किसी आला को खिताब कर रहा है, तो हुआ दुआ, तब वो दुआ के मीनिंग में होगा, तब वो दुआ के मीनिंग में होगा। यानी मुराद है, फॉर एग्जांपल, जब हम अल्लाह ताला, जब एक बंदा अल्लाह ताला की तरफ खिताब करता होगा, मसलन ना कौलिही ताला, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अपने मोमिन बंदों के मतलब कि मोमिन जो होते हैं वो क्या कहते हैं? रब्बना ला तुआखिजना, रब्बना ला तुआखिजना, दाल पे यहाँ पे सुकून दाखिल होगी, क्योंकि ला जो है ये ला नहीं, ये फेल मुजारे को यहाँ पे मजूम बनाएगा। रब्बना ला तुआखिजना, ये यहाँ पे नहीं के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे किसके लिए है? ये यहाँ पे दुआ के लिए, यानी हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह आप हमें मुआखजा न करें, नाउज़ बिल्लाह, हम अल्लाह ताला की अल्लाह ताला को ये नहीं नहीं कर रहे, हुक्म नहीं दे रहे, वलियादु बिल्लाह, बल्कि ये यहाँ पे दुआ के लिए है। या अल्लाह हमें उस पर मुआखजा न करना, इन नसीना और अख्ताना, अगर हम कोई चीज़ भूल जाए या हमसे कोई गलती हो जाए उस पर, यानी अख्ताना बिमाना आमदन कोई गलती ना हो जाए। वह इनका मिन मुसावी लिमुसावी, अब अगर कोई शख्स दूसरे शख्स को जो उसके मुसावी हो, यानी दोनों मंजिलत में सेम है, एक मुसावी शख्स दूसरे अपने मुसावी शख्स को, यानी जो मंजिलत में दोनों सेम है, उसको उसकी तरफ ही खिताब कर रहा है ला से, हम कहेंगे फहुवा इल्तिमास, वो इल्तिमास है, यानी रिक्वेस्ट, वो एक रिक्वेस्ट है ना, वो कौली का ज़मीरी का, जैसे कि आप मसलन अपने दोस्त को कहेंगे ला ततअखर इलल मौइद, कि जो अपॉइंटेड टाइम है या जो अपॉइंटेड प्लेस है या जो अपॉइंटेड मीटिंग वगैरह है उसमें तअखीर, वहां पर पहुंचने में तअखीर, फॉर एग्जांपल मत करना, ला ततअखर, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको। ये था ला, ये था ला अन्नाहिया। अब दूसरा जो है लम, वो गुजर चुका है इससे पहले, वतकद्दम अन्हा हर्फ नफीन मुख्तस्सुन बिजज़्म मुज़ारे, की ये भी लम जो है ये हर्फ नफी है, जो खास से किसके साथ? फेल मुजारे को मज्जू बनाने के साथ, और ये फेल मुजारे को माजी में के मीनिंग में ले जाता है और उसको जज्म देता है। और हमने तब कहा था कि इसको फिर हम कहते हैं हर्फ नफीन व कल्बिन व जज्म। एक तो ये नफी करता है, और कल्ब यानी फेल मुजारे को फेर लेता है, पलट देता है माजी की तरफ, कलाबा बिमाना पलट देना, व जज्मिन, और फेल मुजारे को मजूम बनाता है। ये गुजर चुका है। अब जो आज हम इस कार्य में देख रहे हैं वो है
جو मुसन्निफान इस लेसन में बयान करते हैं वो है लम्मा, वही मिन अदवात التي تجزم فعلا मुदारिअन वाहिदन। लम्मा जो है ये ऐसे अदवात में से है, यानी ऐसे टूल्स, ऐसे अवामिल में से है जो एक फ़ेल मुजारे को मजूम बनाता है। वो तख्तस बिल मुजारे, और ये खास होता है किसके साथ? मुजारे के साथ। ये माजी पे दाखिल नहीं होता है, ना ही ये अमर पे दाखिल होता है। वह तश्तरिक मालम फिल हरफियती वल जज्म, और ये लम के साथ मुश्तरक है। लम और लम्मा दोनों कॉमन है इस चीज में कि लम जो है वो भी हर्फ है और लम्मा जो है वो भी हर्फ है। इसी तरह लम जो है वो भी जज्म है और लम्मा जो है वो भी जज्म है। ठीक है। और इसी तरह नफी में भी, हर्फ होने में भी, नफी में भी, जज्म में भी, इन सब में ये मुश्तरक है। इन सब में ये मुश्तरक है। और हम ये भी कहेंगे कि कल में भी ये मुश्तरक है। ये भी फेल मुजारे को बुनियादी तौर पर माजी की तरफ ले जाता है, मगर फ़र्क है। फ़र्क क्या है? मुसन्निफ़ान बयान करते हैं गैर अन नफ़िय बिहा बिमाना लम्मा, यानी मगर लम्मा से जो नफ़ी होती है वो नफ़ी यस्तमिर इला ज़मानी तकल्लुम, वो तकल्लुम यानी जिस ज़माने में मुतकल्लिम कलाम कर रहा है उस ज़माने तक नफ़ी जो है वो बरकरार रहती है। वो बरकरार रहती है इला ज़मानी يستمر إلى زمن التقلب بمعنى فيمتد الزمن المنفي، فيمتد الزمن المنفي بها إلى زمن النطق، यानी जिस जमाने की नफी की जा रही है वो इलोंगेट होता है, वो मुमतद होता है, वो मुस्तमिर रहता है, वो फैलता है किस जमाने तक? जिस जमाने में कलाम हो रहा है। इसलिए फयशमलुल मादिय वल हाली वल हालिय हालिय मअन, यानी ये माजी के ज़माने को भी शामिल है और हाल के ज़माने को भी शामिल है एक साथ। कैसे? नहव कौलिही ताला, अभी हमें मिसाल से समझ आएगा। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है सूरह हुजुरात की आयत, क़ालतिल आराबु आमन्ना, आराब जो है वो उन्होंने कहा कि हमने ईमान लाया। कुल, आप कहिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लम तुमिनु, आपने ईमान नहीं लाए। देखिए लम तुमिनु ये माजी के लिए है, ये माजी के लिए है, यानी आपने ईमान नहीं लाया। वलाकिन कूलू, मगर आप कहे असलमना, यानी हमने अभी इस्लाम लाया है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, मगर अभी तक, देखिए यहाँ पे हमने नहीं कहा कि माजी में आपके दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ, मगर कह रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहा है अभी तक, यानी माजी में भी और इस वक्त तक, अभी तक, यानी द ईमान हैज नॉट येट एंटर्ड इन योर हार्ट्स, जिसे फिर इंग्लिश में कहते हैं येट। उस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए कि ये लम्मा जो है ये माजी के लिए भी है और हाल के लिए भी है, यानी अभी तक, यानी उम्मीद है, यानी अभी तक दाखिल नहीं हुआ, यानी मुस्तकबिल में दाखिल हो सकता है। इसलिए फलम्मा हर्फ नफीन व जज्मिन व कल्बिन, लम्मा जो है ये भी लम की तरफ हर्फ नफी है, हर्फ जज्म है, हर्फ कल्ब है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया और इससे पहले भी वजाहत कर चुका हूँ। वल फ़िअल, और उसके बाद जो फ़िअल है यदखुल मजजूमुन बिलम्मा, ये मजजूम है किससे? लम्मा से। मगर हम देख रहे हैं कि इस आयत में क्या है, यहाँ पे कसरा है, यहाँ पे तो जज्म नहीं है। हम कहेंगे कि ये मजजूम है बिसुकून, बिसुकून मुकद्दर, मुकद्दर सुकून से यहाँ पे मजजूम है। कसरा इसलिए दाखिल हुआ ताकि इसको इसके साथ जोड़ा जाए, लम्मा यदखुलिल ईमान, इसको क्योंकि लाम पर भी सुकून है, अलिफ पर भी सुकून है, इस्लाम को इस्लाम के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे कसरा देना पड़ा, वरना यहाँ पे एराब के एतबार से ये मजजूम है। चौथा जो है वो है, यानी चौथा अदात जो फेर मुजारे को मजजूम बनाता है वो है लामुल अमर, या इसे लामुल तलब भी कहते हैं। लामुल अमर भी कहते हैं और इसे लामुल तलब भी कहते हैं। जैसे मैंने इससे पहले कहा कि तलब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे कोई चीज तलब की जाती है। और ये लामुल अमर है, ये क्या करते हैं? वतजअलुल मुजारे मुफीदन लिल अमर, ये फेल मुजारे को अमर के अमर का फायदा देता है, उसको अमर के मीनिंग में रखता है। मगर कब? इन कान मिन अदना इला आला, जब ये यहाँ पे ये इनकाना, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इनकाना मिन आला इला अदना, इनकाना मिन आला इला अदना, ये यहाँ पे लिखने में गलत हुआ है। इनकाना मिन आला इला अदना नहव कौलिही ताला, यानी जब आला मंजिलत रखने वाला नीचे वाली मंजिलत रखने की तरफ ये खिताब इस्लाम से करेगा। नहव कौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं
यानी अल्लाह ताला अपने बंदों को खिताब करता है, या अल्लाह ताला अपने बंदों को ये हुक्म देता है, लियुनफिक ज़ू सअतिन मिन सअतिह, कि वुसअत वाला अपनी वुसअत के एतबार से खर्च करे, यानी जिसकी जितनी वुसअत है, जिसके पास जितना है उस एतबार से वो खर्च करे। देखिए लियुनफिक असल में था ये अनफका युनफिकु से युनफिकु युनफिकु, मगर जो ही लामुल अमर दाखिल हुआ लि युनफिक, इस पे अब सुकून दाखिल हो गया, लियुनफिक, अब इसमें अमर का माना आ गया, यानी खर्च करे, हुक्म खर्च करे। व इनकान मिन अदना इला आला, अब अगर अदना की तरफ, अदना शख्स की तरफ, किसी आला मंजिलत रखने वाले की तरफ ये खिताब होगा या ये लामिल अमर इस्तेमाल होगा, तब वो दुआ होगा। यानी जैसे मसलन जहन्नमी जो है ना वलियाज़ुबिल्लाह, वो जहन्नम का जो दारोगा है जिसका नाम मालिक है, उनसे कहेंगे वना दो, यानी वो पुकारेंगे या मालिक, ए मालिक, ए जहन्नम के दारोगा मालिक, लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, बस तुम्हारा रब हम पर मौत का फैसला सुना दे, हमको हलाक कर दे, हमको खत्म कर दे, हम ये अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये असल में था कदा यक़ज़ी। यक़ज़ी का असल माना होता है फैसला सुनाना, और यक़ज़ी का एक और माना भी होता है, यानी मौत का फैसला सुना या किसी को मौत दे देना। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब आया है ना वो, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बनो इसराइल के किसी शख्स को थप्पड़ मारी, अल्लाह ताला ने कहा फ़क़ज़ा अलैहि, यानी उसका मामला तमाम कर दिया, खत्म कर दिया उसको। इस तरह यहाँ पे भी यानी अल्लाह ताला हमारा मामला खत्म कर दे, हमको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे, हम पर मौत का फैसला सुना दे। लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, असल में था ये यक़ज़ी, मगर जो ही लामुल अमर दाखिल हो गया, ये अब मजज़ूम बन गया किससे? जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं कि जो मुअत्तलुल आखिर होता है वो मजज़ूम किससे बनता है? आखिरी जो हर्फ़ इल्ला है उसके हज़फ होने से। व इन कान मिनल मुसावी लिमुसावी, अब अगर ये किसी मुसावी शख्स, यानी जो दोनों एक ही मंज़िलत के शख्स हैं, एक मुसावी शख्स दूसरे अपने मुसावी शख्स की तरफ ये इस्तेमाल करता है, वो इल्तिमास, तब ये रिक्वेस्ट है ना, वो कौल कली ज़मीली का मसलन, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने दोस्त को कहेंगे लितअख़ुज़ हाज़ल कलम, तुम ये कलम पकड़ो, यानी आप उसको हुक्म नहीं दे रहे बल्कि आप उसको तो इल्तिमास कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं लितअख़ुज़ हाज़ल कलम, यानी ये कलम पकड़ो, लितअख़ुज़ हाज़ल कलम। अब जो दूसरी किस्म के जवाज़िम हैं वो हम इंशाअल्लाह इस लेसन के दूसरे पार्ट में देखेंगे, जिसमें मुसन्निफ़ बयान करेंगे ऐसे अदवात जो दो फ़िल मुज़ारे को मज़मूम बनाते हैं। अब हम देखेंगे इंशाअल्लाह इस लेसन के तमरीनात, इस लेसन के हम अब तमरीनात देखेंगे। मुसन्निफ़ान बयान करते हैं, दोनों मुसन्निफ़ान बयान करते हैं तमरीनातुन एक्सरसाइज़, उसमें पहली एक्सरसाइज़ बयान करते हैं ضع الأفعال المضارعة الآتية في जुमल मुफीदा, आने वाले जो ये अफ़आल मुज़ारे हैं आप उनको मुफीद जुमलों में रखें, व अदखिल अलैहा लम्मा, और उस पर दाखिल करें किसको? लम्मा को। आने वाली जो सारे अफ़आल हैं ये कौन से अफ़आल हैं? ये फ़िल मुज़ारे हैं, और उन पर दाखिल करना है लम्मा, जैसा कि हमने देखा कि लम्मा सिर्फ दाखिल होता है किस पर? फ़िल मुज़ारे पर। वज़बित अवाखिरहा, और लम्मा दाखिल करने के बाद इन अफ़आल मुज़ारे के आखिरी हरूफ जो हैं उनको शक्ल दे, उनको ज़ब्त दे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल युसाफ़िरु, साफ़रा युसाफ़िरु, सफ़र करना। मसलन हम कहेंगे मिसाल के तौर पर लम्मा युसाफ़िर, देखिए अब जब लम्मा दाखिल हुआ रा पर सुकून आ जाएगा, रा पर सुकून आ जाएगा। लम्मा युसाफ़िर मुहम्मदुन इला मक्कता, लम्मा युसाफ़िर मुहम्मदुन इला मक्कता, कि अभी तक मोहम्मद ने मक्का तक सफ़र नहीं किया, यानी मोहम्मद नामी कोई शख्स उसने अभी तक सफ़र नहीं किया। ये जुमला मुफीदा है, जब हमने लम्मा इस पे दाखिल किया ये मजूम बन गया। लम्मा जो है ये, जैसा कि हमने देखा, ये ऐसा हर्फ है जो नफ़ी तो करता है मगर वो नफ़ी मुस्तमिर रहती है माजी से लेकर प्रेजेंट ज़माने तक। उसी तरह उसके बाद है यक़रा, उसके बाद है यक़राउ, क़रा यक़राउ पढ़ना।
मसलन हम कहेंगे लम्मा यक़रा वलदी अल कुरआन, लम्मा यक़रा वलदी अल कुरआन, कि मेरे बेटे ने अभी तक कुरान नहीं पढ़ा। लम्मा यक़रा वलदी अल कुरआन, यक़रा, अभी तक मेरे बेटे ने कुरान नहीं पढ़ा। उसके बाद है यूकिदु, उसके बाद है यूकिदु। यूकिदु कहते हैं जलाने को। मसलन हम कहेंगे लम्मा यूकिद, लम्मा यूकिद अलीयुन अल मिस्बाह, अली ने अभी तक चिराग नहीं जलाया। लम्मा यूकिद अलीयुन अल मिस्बाह, लम्मा जब दाखिल हुआ यूकिद पर, ये मजूम बन गया। उसके बाद है यअती, यअती, देखिए यहाँ पर अब ख्याल रखना, यअती जो है इसमें लास्ट पर जो है ये हर्फ इल्ला है। जब इस पर लम्बा दाखिल होगा ये हर्फ इल्ला हज़फ हो जाएगा, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, ये चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये फिर मुज़ारे मजूम है, इसलिए अब हम कहेंगे लम्मा याती, लम्मा याती। मसला हम कहेंगे लम्मा याती अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस अभी तक नहीं आया, लम्मा याती अल मुदर्रिसु। इसी तरह यंसा, इसी तरह यंसा। मसलन हम कहेंगे, देखिए यहाँ पे भी यंसा में भी जो है लास्ट पे हर्फ इल्ला है, नसिया यंसा, नसिया यंसा। मसलन हम कहेंगे हाफिज़ अत्तालिबु अद्दर्स, तालिब इल्म ने दर्स हिफ्ज किया, वलम्मा यंसा, असल में था यंसा, लेकिन जब लम्मा दाखिल हुआ मजूम बन गया बिहज़्फ हर्फ इल्ला। यानी तालिब इल्म ने दर्स हिफ्ज किया मगर अभी तक वो नहीं बोला, अभी तक उसको वो दर्स याद है। उसके बाद है यफ़हम, उसके बाद है यफ़हम। मसलन हम कहेंगे शरह अल मुअल्लिमु अद्दर्स वलम्मा यफ़हम अत्तुल्लाबु, या हम कह सकते हैं वलम्मा यफ़हमहु, हज़्फ भी कर सकते यानी उसको, यानी दर्स को। यानी मुअल्लिम ने दर्स की शरह की, उसको एक्सप्लेन किया मगर अभी तक तुल्लाब इल्म को वो दर्स समझ नहीं आया। लम्मा यफ़हम, मीन जो है यह हर्फ इल्ला नहीं है, इसलिए ये मजूम बनेगा सुकून से। फिर है यस्फू, देखिए यहाँ पे भी लास्ट पे हर्फ इल्ला है, यस्फू, सफ़ा यस्फू, सफ़ा यस्फू, यानी किसी चीज़ का साफ हो जाना, किसी चीज़ का साफ हो जाना। मसलन हम कहेंगे मिसाल के तौर पर अज़लतु अत्तुराब, या तुराब के बदले हम कहेंगे अज़लतु, अज़लतु, एक सेकंड। मसलन हम कहेंगे अज़लतु अत्तीन मिनल माइ वलम्मा यस्फु, वलम्मा यस्फु, यानी मैंने पानी से मिट्टी को हटा दिया, वलम्मा यस्फु, लेकिन अभी तक वो साफ नहीं हुआ। लम्मा जब दाखिल हुआ मजूम बन गया बिहज़्फ़िल वाव या बिहज़्फ़ि हर्फ़ इल्ला।
उसके बाद जो दूसरी तमरीन है उसमें मुझसे बयान करते हैं ضع الافعال المضارع الاتيه في جمل مفيده आने वाले अफ़आल मुज़ारे जो है उनको आप मुफीद जुमलों में रखें और उस पर दाखिल करें लामुल अमर को, उस पर दाखिल करें लामुल अमर को वज़बित अवाखिरहा, और उन अफ़आल को लामुल अमर दाखिल करने के बाद आप हरकत दो, आप हरकत दो। मसलन पहला जो है वो है यदो, देखिए यहाँ पे भी वाव जो है लास्ट पे जो है ये हरफ इल्ला है, ये हरफ इल्ला है। जब हम इस पे लाम दाखिल करेंगे, मसलन हम कहेंगे लि यदो अल मुमिनु रब्बहू वहदहू, लियदउ अल मुमिनु रब्बहू वहदहू, कि मोमिन को चाहिए कि वो सिर्फ अपने रब को पुकारे, उसको दुआ करे। देखिए लाम जो दाखिल हुआ लामुल अर, इसने इसको फेल मुजारे को मजूम बनाया है, मगर कैसे मजूम बनाया? बिहज़्फ़ हर्फ़िल इल्ला, जो यहाँ पे वाव है। उसके बाद है यअमुर, उसके बाद है यअमुर। जब हम इस पे लाम दाखिल करेंगे, जब हम इस पे लाम दाखिल करेंगे, मतलब हम कहेंगे लि यअमुर, अब सुकून आएगा क्योंकि रा जो है ये सही हर्फ है। मतलब हम कहेंगे लिया अमुर अल मुस्लिम बिल मारूफ, कि मुसलमान को चाहिए कि वो नेकी का हुक्म दे, मुसलमान नेकी का हुक्म देना चाहिए। लिया अमुर मुस्लिम बिल मारूफ, लिया अमुर मुस्लिम बिल मारूफ। इसी तरह यगफिर, मसला हम कह सकते हैं लियगफिर इंसान खता अखीह, लियगफिर इंसान खता अखीह, कि इंसान को चाहिए कि वो उसको अपने भाई की गलती माफ़ करनी चाहिए। या इसी तरह यस्मा, मसलन हम कहेंगे लियस्मा मरउ अल अजान इंदमा युअज्जिनु मुअज्जिन, लियस्मा अल मरउ, यानी इंसान को चाहिए कि वो अजान सुने जब मुअज्जिन अजान दे रहा हो। या इसी तरह यरमी, यरमी जो है इसमें लास्ट में हरफ इल्ला है, हम कहेंगे मिसाल के तौर पर ली यरमी, ली यरमी, या यहाँ पे जो ये या है रमा यरमी, रमा यरमी। ये मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि मिस्री प्रिंट्स में जब या जो होता है, या और अलिफ में आसानी से फ़र्क समझ नहीं आएगा, मगर सिर्फ उसको जिसको वर्ड के मतलब ऑलरेडी पता होगा, वरना इंसान यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं यरमा, मगर यहाँ पे यरमी है। लियरमी, लियरमी अर्रामी अस्सहम नहवल गायती, कि तीर अंदाज को, तीर लगाने वाले को चाहिए कि वो, या तीर अंदाज जो है या लगाने वाला जो है, शूटर जो है, वो अपना तीर जो है, एरो जो है, गाया है यानी टारगेट की तरफ, नहवल गायत, टारगेट की तरफ लगा ले। लियरमि रामी अस्सहमा नहवल गायत। इसी तरह यंतबिह, मुतनब्बिह होना, मसला हम कहेंगे लि यंतबिह, लि यंतबिह अत्तिलमीज़ु इलल मुअल्लिम, लियंतबिह अत्तिलमीज़ु इला मा यक़ूलुहुल मुअल्लिम, कि तिलमीज़ जो है वो मुतनब्बिह हो जाए, कॉशियस हो जाए, ध्यान से सुनिए जो मुअल्लिम कह रहा है। इसी तरह यरदा, जब हम यरजा पे दाखिल करेंगे हम कहेंगे लियरदा, लियरदा, ये भी मजबूत बनेगा कैसे? बिहज़्फ़ हर्फ़िल इल्ला, क्योंकि लास्ट पे यहाँ पे अलिफ है जो असल में या है, रज़िया यरदा, लियरदा, लियरदा। मसलन जब हम इसको मुफीद जुमले में दाखिल करेंगे, मसला हम कहेंगे लियरदा अल मुस्लिम बिहुक्मिल्लाह, कि मुसलमान को ज़रूरी है कि वो राज़ी हो अल्लाह ताला के हुक्म से, चाहे फिर वो शरई हुक्म हो या
तकदीरी हुक्म। उसके बाद मुसन्निफान कहते हैं इक़रा अल अमसिलत अल आतियत वज़अ लम्मा बदलन मिन लम फी कुल्ल मिसालिन यस्लुहु फीही ज़ालिक। बयान करते हैं कि आने वाली मिसालों को पढ़ो और लम्मा को रखो किसके बदले, लम की जगह। यानी यहाँ पे इन जुमलों में लम दिया हुआ होगा, हमें वहां पे रखना है लम, मगर कहाँ पे रख सकते हैं? हर उस मिसाल में रखना है जिस मिसाल में दुरुस्त होगा लम के बदले लम्मा रखना। अब हमें ये मिसाल से समझ आएगा कहाँ पे दुरुस्त हो सकता है लम के बदले लम्मा रखना। मसलन पहली मिसाल में मुस्लिम कहते हैं लम नज़हब इलल हदीक़ति अम्स। देखिए यहाँ पे माजी की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे लम्मा को दाखिल नहीं कर सकते। मसला हम नहीं कह सकते लम्मा नज़हब इलल हदीक़ति अम्स कि हम अभी तक गार्डन में कल नहीं गए। ये गैर माकूल बात है, बात कल की हो रही है और कह रहे हैं अभी तक, इसलिए ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए दुरुस्त नहीं है। दूसरे जुमले में मुसन्निफ बयान करते हैं लम यहज़ुर वलदी वालिदी मिन सफर। मेरे वालिद साहब सफर से नहीं लौटे, मेरे वालिद साहब सफर से नहीं लौटे। देखिए यहाँ पे खाली माजी की बात हो रही है, यहाँ पे हम या यहाँ पे जो लम है ये दाखिल हुआ है और इस पे ऐसी कैद नहीं लगाई गई है कि जिससे ये खास हो जाता किससे, खाली माजी के वक्त से या मसलन कल के वक्त से। यहाँ पे हम लम्मा ला सकते हैं, यहाँ पे हम लम्मा ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है अम से। यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लम्मा यहज़ुर वालिदी मिन सफर, यानी अभी तक मेरे वालिद साहब सफर से नहीं लौटे। लम्मा यहज़ुर वालिदी मिन सफर। इसी तरह नज़ल अल मतर वलम यनक़ति कि बारिश गिरी थी और नहीं रुकी थी। हम कह सकते हैं यहाँ पे नज़ल अल मतर वलम्मा यनक़ति कि बारिश गिरी मगर अभी तक नहीं रुकी। इसी तरह लम अज़ुर अल बारिहता अहदन। देखिए यहाँ पे कैद लगी है, यानी ये खास ही जुमला हो गया माजी के साथ। हम नहीं यहाँ पे कह सकते लम्मा अज़ुर अल बारिहता अहदन कि मैं कल अभी तक, ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम ऐसे ही रखेंगे लम अज़ुर अल बारिहता अहदन, यानी मैंने कल किसी को विजिट नहीं किया था। इस तरह लम तरबह तिजारतुना फिल आमिल मादी, यहाँ पे भी हम लम्मा जो है वो नहीं लगा सकते। यहाँ पे भी हम लम्मा जो है नहीं लगा सकते क्योंकि ये पिछले साल की बात हो रही है। मसला हम यहाँ पे नहीं कह सकते लम्मा तरबह तिजारतुना फिल यानी पिछले साल में अभी तक हमारी तिजारत नफा बख्श उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कह सकते। इसी तरह ज़ाअत असाया वलम अजिदहा, मेरी छड़ी जो है वो गुम गई मगर अभी तक मगर उसको मैंने नहीं ढूंढा, उसको मैंने नहीं पाया, यानी माजी में। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मेरी छड़ी गुम गई वलम्मा अजिदहा, अभी तक मैंने उसको नहीं ढूंढा। चौथी तामीम में मुसन्निफ बयान करते हैं ضع بدل كل جملة من الجمل الآتية جملة أخرى موافقة لها في المعنى بحيث يكون فعلها مضارع। बयान करते हैं आने वाले जो जुमले हैं उन जुमलों में से हर एक जुमले के बदले आप दूसरा एक जुमला रखे जो उसके मुवाफिक हो मीनिंग में, मगर जो आप जुमला रखेंगे उसका फ़ेल जो है वो मुजारे का होना चाहिए मगर मीनिंग सेम देना चाहिए। मसलन पहले जुमले में मुसन्निफान बयान करते हैं मा साफरा अखी इलल आन कि मेरे भाई ने अभी तक सफर नहीं किया। हम यहाँ पे कह सकते हैं लम्मा युसाफिर अखी। अब हमें इलल आन कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि लम्मा में वो मीनिंग मौजूद है। मैं यानी मेरे भाई ने अभी तक सफर नहीं किया, सेम मीनिंग। इस तरह नम मुबक्किरन वस्तैकिज मुबक्किरन। देखिए नम मुबक्किरन, यहाँ पे जो नम है ये फेले अमर है, हमें इसके बदले फेले मुजारे रखना है लेकिन वो अमर के मीनिंग में ही हो। वो कैसे हम कर सकते हैं, हम फेले मुजारे पे लामुल अमर दाखिल करेंगे। मसलन हम कहेंगे लितनम, लितनम, लितनम मुबक्किरन। उसके बाद कहेंगे वल, जब हर्फ, ये जो हर्फ हो हत्फ होता है, हर्फ अत्फ के बाद हम लाम पर सुकून रख सकते हैं। असल में था वली तस्तयकिज, मगर हम वाव के बाद सुकून भी रख सकते हैं इस्लाम अल पर, इसलिए हम कहेंगे वल तस
मुबक्किरन, यानी जल्दी सो और जल्दी उठ जाओ। यहाँ पे ये दोनों फेल अमर थे, लेकिन हमने इसको फेल मुजारे में तब्दील किया और उस पर लामुल अमर दाखिल कर दिया। लितनम मुबक्किरन वल तस्तयकिज़ मुबक्किरन। उसके बाद इरहम ज़ईफ, कमजोर पर रहम करो, हम कहेंगे लि तरहम अज़ईफ़ा, लि तरहम अज़ईफ़ा। पहले मुजारे आ गया और उसने अमर का मीनिंग भी दिया इस्लाम की वजह से। इसी तरह मन तहश्शिताउ इलल आन, मन तहश्शिताउ इलल आन, यानी शिता का जो मौसम है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। हम यहाँ पे कह सकते हैं लम्मा यंतही, लम्मा यन लम्मा यंतही, असल में था यंतही, लेकिन जो जब लम्मा दाखिल हो गया या हर्फ इल्ला जो है वो हज़फ हो गया जज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। लम्मा यंतही अश्शिता, अब इलल आन कहने की जरूरत नहीं है, यानी अभी तक शिता का मौसम खत्म नहीं हुआ। इस्तमे नुस्हा वालिदिक, इस्तमे को हम तब्दील करेंगे लितस्तमे, ले तस्तमे, क्योंकि मुखातब को यहाँ पे खिताब हो रहा है। ले तस्तमे नुस्हा वालिदिक, कि तुम्हें चाहिए या तुम सुनो अपने वालिद की नसीहत, अपने वालिद की नसीहत। उसके बाद है एक सिल्फा का कबल नौ में, सोने से पहले अपना मुंह धो लिया करो, धो लो, सोने से पहले अपना मुंह धो लेना। हम कहेंगे ले तग तसिल, ले तग तसिल, ले तग तसिल फमा का कबलन नौमी, कि सोने से पहले अपना मुंह धो लो। उसके बाद पांचवी और आखिरी तमरीन में मुझसे बयान करते हैं, उसमें पांचवी तमरीन में पहले पार्ट में बयान करते हैं कौन जुमलतैन फी कुल्ल मिनहुमा फ़िअलुन मुदारिउन सहीहुल आखिर मजजूमुन बिलम्मा, यानी दो ऐसे जुमले बनाओ जिन दोनों जुमलों में ऐसा फ़ेल मुज़ारे होना चाहिए जो सहीहुल आखिर हो, यानी उसका आखिरी हर्फ हर्फ इल्ला ना हो और वो मजजूम हो लम्मा से। उसके बाद दो और जुमले बनाने हैं जिसमें फ़ेल मुज़ारे हो मगर उसका फ़ेल मुज़ारे मुअत्तलुल आखिर हो और उस पर लम्मा दाखिल करना है। और इसके बाद दो और जुमले बनाने हैं जिसमें फ़ेल मुज़ारे हो सहीहुल आखिर हो लेकिन उसमें लामुल अम्र हो। और उसके बाद फिर और दो जुमले बनाने हैं जिसमें फ़ेल मुज़ारे हो मुअत्तल हो मगर उसमें लामुल अमर हो। इसके साथ जो है इस लेसन का जो पहला पार्ट है वो ख़त्म होता है। उसके बाद मुसन्निफ़ आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, अल अदावात अल्लती तजज़ुमु फ़िअलैन, जो हम इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में देखेंगे। यहाँ पर हम आज के दर्स का इख्तिताम करते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।